So let's go ahead with more on ray optics. So if you remember, हमने last session में we have seen prism theory. We started with prism formula. Prism formula हमने derive किया था and also we have seen intermediate steps. जो बीच में equations आते हैं जैसे I plus E equal to A plus delta. Then if you remember R1 plus R2 equal to A. Then of course 2I equal to A plus delta M. Then I equal to A plus delta M by 2. R1 equal to R2 at minimum deviation and angle. So in that case, you have R1 equal to A by 2, so on and so forth. हमने बाद में फिर प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था, which turned out to be mu equal to sine of A plus delta M by 2 upon sine of A by 2. फिर for small angle मतलब for thin prism इस फॉर्मूला को we can further simplify mu equal to A plus delta M by 2 upon A by 2 कैंसल, इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो mu A equal to A plus delta M. So delta M was equal to mu A minus A, so this is equal to mu minus 1 into A. और ये जो delta M है, this is one of the values of angle of minimum deviation, तो यहाँ से M हमने हटा दिया था. And this is what you need to know, because this formula we will need for the next topic. Good. तो अब अगला topic है dispersion of light. So the next thing that we need to know is dispersion of light. और आपको already पता है what do we mean by dispersion of light? The splitting of white light into its constituent component colors is known as dispersion. तो हमारे पास एक prism है. We have a prism and then of course you should know, ये dummy line draw की है मैंने just for the sake of showing an equilateral prism. Fine. तो we have a prism और ये prism का principal section है and you know that white light मतलब light which constitutes of 7 colors. So there is this white light which is incident. अगर ये prism नहीं होता तो ये light सीधा जाता, तो this is original direction, but because you know there is a prism, so light ray will travel from rarer to denser medium. और आपको ये भी पता होना चाहिए, I will not go into details, हम details नहीं देखेंगे, but जो पता होना चाहिए, that is refractive index is C by, if you remember, V. So what happens is, यहाँ से आपको पता है V is n lambda, C upon n lambda. Fine. This is what you should know. Refractive index of a medium is nothing but speed of light in vacuum to that of speed of light in given medium. So what do you see here is lambda is C by n. मतलब in short ये constant है. तो lambda and mu are inversely proportional. What happens? Material तो एक ही है हमारे पास. Material तो glass का है तो glass का ही है. But refractive index for different wavelength is different. तो अगर wavelength ज्यादा है तो उसका refractive index कम होगा, अगर wavelength कम है तो उसका refractive index ज्यादा होगा और आपको already पता है, you know that mu equal to sin I by sin R. So what you know is from here sine of angle of refraction equal to sine of angle of incidence upon mu. अब क्योंकि ये white light था, इंसिडेंट लाइट क्योंकि व्हाइट लाइट था, तो उसमें 7 कलर थे, 7 के साथ सबके सब कलर का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम ही होगा, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो 7 कलर साथ में आ रहे थे तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, लेकिन सबका वेवलेंथ सेम नहीं है. सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब रेड कलर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, राइट. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सब पैरामीटर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो व्हाट यू सी इज, अगेन आपको विब्ग्योर बताना चाहिए, वायलेट टू रेड. तो व्हाट हैपेंस इज, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू, वो आपका जॉब है, यू आर सपोज्ड टू सी, बट अल्टीमेटली यू नीड टू नो दिस. वेवलेंथ अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तो फिर रिफ्रैक्शन एंगल भी सबका सब कलर्स का अलग अलग होगा. तो व्हाट हैपेंस, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वेवलेंथ अलग है और v इक्वल टू n लैम्बडा होता है, तो हर एक कलर, ईच कलर
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी होगा वो, ईच ऑफ देम ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन अ प्रिज्म। तो होता क्या है कि हर एक कलर का बेंडिंग अलग अलग अमाउंट से होता है। जो सबसे कम डेविएशन होता है वो है रेड का। और वापस से एट द अदर सरफेस, आई विल गिव इट सम नेम्स टू दिस। ये प्रिंसिपल सेक्शन है एबीसी। AB सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और AC से लाइट एमर्ज हो रहा है, एमरजेंट है। तो यहाँ पे वापस से एक बार बेंडिंग होगा, वंस अगेन इट विल बी बेंडिंग, क्योंकि rarer to denser, denser to rarer, it will bend. Similar thing will happen to violet color. Okay, I don't have violet, so I will be using blue color. So anyways, तो अब ऐसा है, ये सबसे ज्यादा बेंड होता है, मैक्सिमम डेविएशन फॉर violet, समझ लो। अब जितने the angle, remember this, maybe sometimes you might get confused, the angle between incident direction and emergent direction, incident and emergent, that is angle of deviation। तो ये बाहर बताना पड़ेगा, नहीं तो यहां दिखा लो। ओके, तो angle of deviation for red color is this, similarly angle of deviation for violet color is this, delta v, right? तो अब सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, एंगल बिटवीन एमर्जेंट एंड ओरिजिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्पर्शन होना। क्या होगा, व्हाइट लाइट जाएगा और व्हाइट लाइट विल कम आउट इन 7 डिफरेंट कलर्स। आई एम शोइंग ओनली 2 हियर, क्योंकि ये दो कौन से है, ये एक्सट्रीम कलर्स है, violet and red, they are extreme colors, this is violet and this is red, and sometimes we may also need yellow। तो मैं yellow बता देता हूं। तो yellow जो है, it is in between, yellow का ऐसा आएगा, something like that, good। तो this is called as dispersion of light। अब हमको एक पैरामीटर डिफाइन करना है जिसको आप बोलते हो एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। Some books denoted by delta, some books denoted by theta, I will use delta। तो angular dispersion मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। The angle between extreme colors, the angular separation of extreme colors, और ये by default है। The angular separation कहाँ पे, in the dispersed beam, क्योंकि dispersion से पहले कौन सा angle, they were all together, but dispersion के बाद what is happening, white light के 7 components है। So what is the angle, angular separation? Angular separation between extreme colors is nothing but angular dispersion, delta। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है ultimately? Ultimately you will see ये पूरा एंगल कितना, डेल्टा v, right? And then this is delta r, तो ये आएगा आपका डेल्टा v minus डेल्टा r। तो angular dispersion is nothing but delta v minus delta r। This is angular dispersion। अब there is something called as dispersive power। The ability of a prism to disperse white light into constituent colors is called as dispersive power। अब देखो ऐसा है, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रिज्म साथ के साथ कंपोनेंट्स दिखाएगा, हो सकता है some prism are showing 3 components, some are showing 5 components। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी प्रिज्म के केस में ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये ज्यादा है, किसी केस में कम है। तो इट विल डिपेंड फ्रॉम प्रिज्म टू प्रिज्म। सो द एबिलिटी of a prism to disperse white light into constituent colors is called as dispersive power, and it is defined as angular dispersion. What is angular dispersion? Delta v minus delta r divided by delta y, where delta y is angular deviation of yellow color। तो ये जो येलो कलर का डेविएशन एंगल है उसको बोलते हो आप डेल्टा वाई। अब येलो ही क्यों लिया, येलो हमने इसके लिए लिया क्योंकि येलो इज ट्रीटेड एज मीन कलर। द थिंग इज, यू ऑलरेडी नो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको ये पता है ये अराउंड 3000 आता है एंगस्ट्रॉम में और ये आता है 7000। फाइन, तो आप बोलोगे मीन तो ग्रीन लेना चाहिए, मिडिल वैल्यू। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे येलो इज टेकन टू बी मीन। Okay, for what reasons we will not discuss, but yellow is taken to be mean,
येलो कलर को मीन लेते हैं हम लोग, दैट इज व्हाई देयर इज सम अदर रीजन बिहाइंड इट, थोड़ा हायर लेवल फिजिक्स है, जस्ट टेलिंग यू। इवन व्हेन यू टेक सनलाइट, सनलाइट में येलो कंपोनेंट ज्यादा है, इट इज ऑफ कोर्स इट्स इंटेंसिटी इज ग्रेटर, तो ग्रीन से ग्रीन दिखता है कभी सन में से ग्रीन लाइट आते हुए, तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, तो विल नॉट गो इनटू हायर लेवल फिजिक्स, बट याद रखना दैट येलो इज टेकन टू बी मीन। तो नाउ डेल्टा ऑफ कोर्स इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ये आ गया आपके पास डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा, इससे पहले मैंने बताया था कि डेल्टा इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अब वॉयलेट कलर के लिए एंगुलर डेविएशन आप लिख सकते हो म्यू वी माइनस 1 ए वी, मत लिखना क्योंकि प्रिज्म सेम है, प्रिज्म इज द सेम प्रिज्म फॉर ईच कलर, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच कलर। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, मैंने अभी भी बताया, और वेवलेंथ फॉर ईच कलर इज डिफरेंट, so that is why only refractive index will be different, nothing else, okay? और one more step ahead, एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा। अभी अभी मैंने बताया कि हम येलो को क्या लेते हैं, मीन कलर। किसका मीन? एक्सट्रीम का मीन, वॉयलेट और रेड का मीन। हाउ डू यू फाइंड आउट मीन? ए और बी का मीन होगा तो a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पे वॉयलेट और रेड बाय 2, तो ऐसा भी लिख सकते हो, फाइन। अदरवाइज एज आई एम टेलिंग यू, आप इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो, तो डेल्टा आर विल बी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वाई विल बी म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। नाउ what you can do after this step is, just a minute, give me a minute, I don't know where it is. Fine, thank you. So here you have omega और डेल्टा वी अभी आपके पास है, डेल्टा वी इज म्यू वी माइनस 1। मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मतलब आपको एंगुलर डिस्पर्शन का भी अल्टरनेट फॉर्म मिल जाएगा। डेल्टा वी इज म्यू वी माइनस 1 ए माइनस म्यू आर माइनस 1 ए। गुड, ए कॉमन निकाल लोगे और फिर म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए, कैंसल एंड कैंसल, तो ये आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन का दूसरा फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, और ये है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। अब क्या करना है, यही डेल्टा आपको यहाँ ओमेगा के फॉर्मूला में लिखना है, ओमेगा के फॉर्मूला लिख दो, तो व्हाट यू विल गेट इज, ओमेगा के फॉर्मूला में आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन डेल्टा वाई, लेकिन डेल्टा वाई इज म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए और ए कैंसल, तो डिस्पर्सिव पावर आपको मिल गया प्रिज्म का म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो दिस इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, ऑफ एनी प्रिज्म इन जनरल, फाइन। अब वंस यू नो दिस, और हमको ऑलरेडी प्रिज्म फॉर्मूला पता है, तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नो, वन इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड अदर इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल, अब हम, अगर आपको याद होगा, हमने लेंस के अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, डू यू रिमेंबर? दो लेंस को हमने कंबाइन कर दिया, फोकल लेंथ में चेंज हुआ। तो अगर इमेजिन आपके पास दो लेंस ऐसे है, व्हेन यू कंबाइन मे बी दे आर बिहेविंग लाइक कॉन्वर्जिंग सिस्टम, तो इफेक्टिवली दे आर बिहेविंग लाइक कॉन्वेक्स लेंस। यू मे हैव लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंस को कंबाइन कर दिया, दे मे बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। अब इन केस ऑफ प्रिज्म, जब आप दो प्रिज्म को कंबाइन करते हो, मतलब ज्वाइंट करते हो, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी है। एक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब लाइट डिस्पर्स तो होगा लेकिन लाइट डेविएट नहीं होगा। यहाँ पे डेविएट हो रहा था ना, यू सी ईच कलर वाज गेटिंग डेविएटेड, राइट? तो वन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो
टू स्टार्ट ऑफ विथ हम पहले डिस्कस कर लेंगे डिस्पर्शन। लाइट डिस्पर्स तो हो रहा है, मतलब व्हाइट लाइट जाएगा, 7 कलर मिलने वाले हैं विदाउट डेविएशन, लेकिन डेविएशन नहीं होगा, मतलब डेविएशन नहीं होगा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन शुड बी 0। अब इस केस में व्हाट यू विल डू इज लेट अस कंबाइन टू लेंस। तो दो लेंस ले लेते हैं, दो लेंस नहीं, दो प्रिज्म। सो लेट्स टेक 2 प्रिज्म। व्हाट आई विल डू इज, इसको बाय द वे इट्स अ नेम गिवन टू द मटेरियल्स दैट वी यूज, इसको बोलते हैं क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। तो पहले मैं दो लेंस ड्रॉ कर लेता हूं, दो प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूं। सॉरी, आई एम कंटिन्यूअसली इन द मोड ऑफ लेंस। so anyways, so I'll draw 2 prisms first. Let's take it like this. थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, we'll make it little smaller. Fine, that's okay. Good. Okay, this is how you will be having it. ऐसा आपको मिलेगा more or less. Good. Now you have 2 prisms. तो 2 प्रिज्म है, उसमें से ये एक का प्रिज्म एंगल है लेट अस से A, दिस इज A, और दूसरे का प्रिज्म एंगल है A डैश। एक को बोलते हैं क्राउन, एक को बोलते हैं फ्लिंट। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट। व्हाट इज डिफरेंट? कुछ नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दोनों का मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग है। बोथ आर टाइप्स ऑफ ग्लासेस ओनली। जैसे ग्लास के लिए आपको पता है 1.5 होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर मैं डेंसिटी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आई कैन मेक इट लिटिल मोर डेंस, तो उसका मैं 1.6 भी कर सकता हूँ। मैंने और डेंसिटी चेंज कर दिया तो 1.7 1.8 भी कर सकता हूँ। तो क्राउन या फ्लिंट, इट इज जस्ट टाइप ऑफ ग्लास विथ मोर डेंसिटी, सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिफरेंट। अब होगा क्या, एज अ टॉपिक सेज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब डिस्पर्शन होने वाला है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे व्हाइट लाइट एंटर होगा, और ये व्हाइट लाइट एंटर हो रहा है यहाँ पे, तो इस अगर प्रिज्म नहीं होते, दोनों प्रिज्म नहीं होते, तो ये व्हाइट लाइट सीधा जाता, राइट। पर प्रिज्म है और इन्होंने बोला है डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन भी होगा, डिस्पर्शन होगा। तो यू विल हैव डिस्पर्शन ऑफ ऑल कलर्स, बट आई विल शो ओनली 3 of them. I will show extreme and I will show mean. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहेगा ये, क्योंकि यहाँ बोला है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डेविएशन नहीं होगा तो डिस्पर्शन कहां से होगा? फिर डेविएशन हुआ किसका? हर एक कलर का, इसलिए तो डिस्पर्शन हुआ, राइट। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। लाइट बेंड नहीं हुआ, लेकिन लाइट बेंड हुआ। क्योंकि लाइट बेंड नहीं होगा तो व्हाइट लाइट तो व्हाइट लाइट ही रहेगा ना, इट विल नेवर ब्रेक अप इनटू कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, क्या होने वाला है यहाँ पे पहला जो क्राउन प्रिज्म है वो इट विल डेविएट बाय सम अमाउंट, देन फ्लिंट विल डेविएट बाय सम अदर अमाउंट। तो फ्लिंट ग्लास जो है ये भी लाइट को डेविएट करने वाला है बाय सम अमाउंट, ओके। एंड देन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट ड्रॉइंग डायग्राम अप टू द स्केल, समझ लेना। पर देखो अभी रेड कलर तो डेविएट हुआ ओरिजिनल डायरेक्शन, और रेड कलर सेम डायरेक्शन है क्या? नहीं। वॉयलेट सेम है क्या? नहीं। तो किसका डेविएशन नहीं हुआ? मीन कलर का डेविएशन नहीं हुआ। तो मीन कलर जब बाहर जाएगा यहां से, तो इट विल बी पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। दिस इज व्हाट दे मीन। डिस्पर्शन मतलब लाइट, व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स होंगे विदाउट डेविएशन। किसका डेविएशन नहीं? मीन कलर का। येलो का डेविएशन नहीं है, मतलब येलो कलर इज गोइंग पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। नाउ वी विल नॉट गेट इनटू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज, हमको स्ट्रेट अवे सिर्फ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। a dash by a, where a dash, of course, as you know, a dash is nothing but angle of flint prism a dash, and a is angle of crown prism. तो a dash by a सीधा सीधा यहाँ बाहर माइनस साइन होना चाहिए, नीचे आएगा आपका म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई डैश माइनस 1, और ऊपर आएगा म्यू वाई माइनस 1। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो एक फॉर्मूला है, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। अब इसमें नीट पे एक बार क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पूछा है, दैट्स इट। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन? दिस इज द कंडीशन, डन, right? So we will not go into derivation. Of course it can be derived,
but derivation is lengthy and we will not go into it. तो ऐसा फॉर्मूला मिलेगा आपको. Now similarly in case 2 where we talk about deviation without dispersion, तो उसका मतलब क्या वो भी समझ लेते हैं. Deviation without dispersion. Without dispersion. What does that mean is, जो पहला प्रिज्म है वो जितने अमाउंट से डेविएट करेगा, सेकेंड प्रिज्म फ्लिंट वो उसको सारे के सारे कलर्स को वापस से सेम डायरेक्शन में ले आएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस, लेट्स टेक इट लाइक दिस. रेड कलर पहले प्रिज्म ने भी डेविएट किया, दूसरे ने भी डेविएट कर दिया. उसके बाद वॉयलेट कलर ले लेते हैं. लेट्स टेक वॉयलेट कलर and the violet color will go something like this. Then you can take yellow color also, right? तो yellow color भी ले लो, yellow color ले लो यहाँ पे. Take it yellow color. तो when going out, all these colors combine again. But only thing is कि now the direction is different. तो क्या हुआ? Deviation हुआ. किसका डेविएशन हुआ? एमर्जेंट का और ओरिजिनल डायरेक्शन का, विदाउट डिस्पर्शन. क्योंकि जो पहले प्रिज्म ने डिस्पर्स किया था, दूसरे प्रिज्म ने वापस कंबाइन कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन. डेविएशन क्यों? बिकॉज द एमर्जेंट रे एज यू कैन सी इज नॉट पैरेलल. अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर आई ड्रॉ इट लाइक दिस. सो इट इज नॉट पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, राइट? सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. इस केस में भी एक फॉर्मूला है, एग्जैक्टली सेम लाइंस पे है. a डैश बाई ए आर माइनस, सिर्फ यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में आपको लिखोगे आप म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और ऊपर आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर. दिस इज व्हाट यू गेट. So this is a formula for deviation without dispersion. And remember, these two topics are only for JEE and NEET. पहले था old syllabus में state board में, but अभी they have removed this. That's strictly for JEE and NEET. So those who are revising for state board, you may simply skip this point. Good. So now we are entering to the last topic, theoretical topic of this chapter, which is basically microscope and telescope. तो we will start with microscope. Microscope में दो टाइप है. अब ये दोनों को दोनों combined नाम आता है इनका optical instruments. Optical instruments में हम पहला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में हम पहला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप. और सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब जस्ट दैट बाइकॉन्वेक्स, टू बी वेरी फ्रैंक इक्विकॉन्वेक्स लेंस. So simple microscope is just that single lens that you use. करते हो क्या वो? You try to focus sunlight on a paper and then you yes. या फिर कभी-कभी अगर आप if you go to a shop जो watch को रिपेयर करते हैं and they put some kind of yes, so they have this simple microscope because there's only one lens. जब एक ही लेंस है तो उसको बोलते हो सिंपल माइक्रोस्कोप. अब एक काम करेंगे, इसका वर्किंग समझने से पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते हैं. एक बार प्रॉब्लम समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा. See the thing is, example, just for an example, we have an object, some object, and हमको ये ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है. You want to know minute details of this object. Or you are standing here far away. This is human eye. You're looking at the object from far away. Clearly नहीं दिख रहा है. फिर क्या करोगे? फिर आप इस ऑब्जेक्ट के पास में जाओगे. Right? Good. And then क्या हो रहा है? Look, when you are going near to the object or object is coming near to you, both things are the same. तो जब ये ऑब्जेक्ट आपसे दूर था, तो angle made by this object on human eye was very, very small. Okay, so angle made by this object at the human eye is small. Fine. तो जितना एंगल छोटा होगा उतना apparent size of the object छोटा होता है. There are many real life examples. The most simple example is you look at stars in the night sky. आपको दिखता है just like a point.
those stars are actually, most of them are actually bigger than our sun, right? और ऐसे एक दो गुना नहीं बोल रहा हूँ, not 1-2 times, maybe thousands of times. So they appear smaller to you because they are far away. Similarly any other vehicle which is far away, aeroplane देखते हो, it appears to you very very small, but that is apparent size. So it depends on how much angle the object is subtending on unaided human eye. Unaided मतलब without the help of any microscope, right? अब होगा क्या, if you bring the object closer to you, or if you go near to the object, तो जैसे जैसे आप पास में जाओगे वैसे वैसे angle subtended by the object on the human eye goes on increasing. जितना पास में जाओगे उतना ही आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा, राइट? गुड. अब एग्जाम्पल इज दैट अगर आपको पता होगा, मे बी देयर इज अ बुक जिसपे बहुत छोटे हैंड राइटिंग में लिखा है, तो यू ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोज, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, लेकिन जितना क्लियरिटी चाहिए उतना मिल नहीं रहा है. देन यू ब्रिंग इट इवन क्लोजर एंड देन everything becomes blurred, right? तो वो कब होता है ह्यूमन आई के लिए? 25 सेंटीमीटर से कम पे. तो 25 सेंटीमीटर इज काइंड ऑफ अ बाउंड्री लिमिट. तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम ब्लर एंड आल्सो इट विल पुट स्ट्रेन ऑन योर आई, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. द मिनिमम डिस्टेंस फॉर अ ह्यूमन आई at which the objects can be seen clearly without straining the eye is called as distance of distinct vision for a normal मतलब जिसमें डिफेक्ट नहीं होगा. तो normal eye it is 25 centimeter, right? For me it may not be 25. I have eye defects. Okay. So anyways, अब उससे तुम ज्यादा पास में लाओगे तो it creates problem. लेकिन जितना क्लियरिटी मुझे चाहिए था नहीं मिला. I still am not able to see minute details, और मुझे जितना मैग्निफिकेशन चाहिए था, मुझे जितना डिटेल्स चाहिए था ऑब्जेक्ट का, अभी भी I am not able to see. So the simple solution to this is take a lens. कौन सा लेंस? बाइकॉन्वेक्स. ठीक है, इक्विकॉन्वेक्स होगा ठीक, नहीं होगा ठीक, बट we'll keep it as इक्विकॉन्वेक्स. तो take a lens. Now what you know is, अब आपको वो याद होना चाहिए एग्जैक्ट मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड, क्योंकि हमको तो मैग्नीफाइड चाहिए ना, नहीं दिख रहा था इसलिए तो लेंस यूज किया. तो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड एक ही केस में होता है. कौन सा केस? व्हाट? फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिक सेंटर. ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया ऑप्टिक सेंटर. तो इन दिस case the image so produced is virtual, erect and magnified. तो एक ही केस है जिसमें इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड बनता है, दैट इज दिस केस. सो इमेजिन ऐसा है ये. तो आपने क्या किया, क्योंकि अनएडेड आई से विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, आपको ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूं मैं एवी. जितना आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली चाहिए था उतना उसका इमेज क्लियर बना नहीं. अभी इमेज क्लियर बना नहीं तो फिर हमने क्या किया, हमने एक सिंगल लेंस यूज कर लिया. कौन सा लेंस यूज कर लिया? बाइकॉन्वेक्स लेंस. इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. ओनली वन लेंस, राइट? और हमने इंटेंशनली ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है सो दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज लेस देन फोकल लेंथ. मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल लेंथ, मतलब फोकस पॉइंट. ठीक है. इन दैट केस यू नो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और वर्चुअल इन द केस ऑफ लेंस इज ऑन द सेम साइड. तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस v. फाइन. अब बाय डेफिनेशन अल्टीमेटली व्हाट इज आवर टास्क इन दिस टॉपिक? हमको ये देखना है कि जो इमेज हमारे पास ऑब्टेन हुआ है वो इमेज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है. मतलब अल्टीमेटली योर टास्क इज टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन, राइट? तो अल्टीमेटली आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो हमको पहले मैग्निफिकेशन डिफाइन करना पड़ेगा. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, पहले समझ लो, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय
फाइनल इमेज a dash b dash on the eye. तो मान लेते हैं ये एंगल सबटेंडेड है, दैट इज बीटा, करेक्ट. अब बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज, सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज. और ऑफ कोर्स इमेज इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब लेंस यूज किया है. एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, एट आई याद रखना, एट आई नॉट एट लेंस. पर ये तो बेसिकली लेंस पे बन रहा है बीटा. बट देन आई टोल्ड यू कि जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, योर आई इज वेरी क्लोज टू द माइक्रोस्कोप. तो ह्यूमन आई इज नॉर्मली वेरी क्लोज, मतलब बेसिकली जितना एंगल लेंस पे बनेगा उतना ही एंगल आई पे भी बनेगा, दैट इज अज्यूम, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, by object at unaided eye. Unaided eye मतलब कोई लेंस नहीं यूज किया आपने. When it is kept at DDV, when it is kept at DDV, मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को DDV पे रखा था, मतलब पहला जो केस है, it is the case when the object is kept at DDV, distance of distinct vision. उस केस में जो एंगल बना अल्फा ऑन unaided eye, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेंस. तो ये रेशियो आपको देगा मैग्निफिकेशन, और इसको मैग्निफिकेशन की जगह पे बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर. दैट्स द ओनली चेंज. है एक ही चीज, इज द सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप इसको नया नाम देते हैं मैग्नीफाइंग पावर. सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. तो मैग्नीफाइंग पावर, दैट्स द चेंज. Right, so magnifying power capital M is by definition beta by alpha, right? और आपको यहां से मिल जाएगा tan alpha. Tan is opposite side upon adjacent side. Opposite side is AB, size of object मतलब, upon adjacent side is D, capital D, right? अगर alpha small हुआ तो tan alpha is equal to alpha, तो ये मिल जाएगा आपको alpha. Similarly, from second diagram, as you see, tan beta is opposite side AB upon adjacent side that is U. लेकिन हमको तो बोला है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, पर हमको तो a dash b dash की बात करनी चाहिए ना. इमेज कौन है? a dash b dash. So it is also equal to a dash b dash upon b. क्यों? क्योंकि देखो tan अल्फा अगर आप इस छोटे ट्रायंगल से लोगे तो इट विल बी AB by U. अगर बड़े ट्रायंगल से लोगे तो इट विल बी a dash b dash by V by V. तो ये पता होना चाहिए आपको. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो देन अगेन द सेम लॉजिक, अगर एंगल स्मॉल है, इफ एंगल इज स्मॉल, तो tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू AB by U equal to a dash b dash by V. So if beta is small, if beta is small, you will have tan beta approximately equal to beta, which is equal to AB by U, which is equal to a dash b dash by V. So now you have what is beta? You have beta which is AB by U. You have what is alpha? Alpha is AB by D. तो AB by D, AB कैंसल, तो आपको मिल गया D by U. तो ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला विच इज D by U. तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज D by U. ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप. ईच फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. एक फॉर्मूला गया तो सब गया काम से. तो यू नीड टू हैव कंप्लीट फोकस हियर. फोकस वो कैसा होता है? फोकस इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. तो फोकस इज पॉइंट ऑफ योर कंसंट्रेशन, इट शुड बी हियर. ओके, देन यू नो ये लेंस है, फिर आपको लेंस का फॉर्मूला भी पता है. लेंस मेकर इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, लेंस फॉर्मूला बोल रहा हूं. लेंस फॉर्मूला इज 1 by f 1 by v minus 1 by u. Now what I will do is I will substitute sign conventions here, using sign conventions. और एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको u फाइंड करना है
तो u को छोड़ के बाकी दो पैरामीटर्स के साइन कन्वेंशन यूज होंगे, मतलब f और v के। और अगर आपको v फाइंड करना है तो v छोड़ के, अब हम यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई तो कर नहीं रहे कि क्या फाइंड करना है। डिड आई टेल यू टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? नो। डिड वी से दैट हमको इमेज डिस्टेंस चाहिए? नो। डिड वी से दैट f चाहिए? नो। तो इन सच केसेस यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन फॉर ऑल ऑफ देम। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, एंड यू नो व्हाट इज साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कॉन्वर्जिंग लेंस, मैं कॉन्वर्जिंग मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, पर यहाँ पे पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है? ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट वाज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट, तो रेज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट दे कन्वर्ट टू द राइट। हाँ, तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है इसका, तो f विल बी पॉजिटिव। और क्योंकि इमेज कौन सा बना? वर्चुअल, मतलब कौन सी साइड पे बना? लेफ्ट पे। तो यहाँ पे u भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे v भी नेगेटिव आएगा, तो पुट देयर। तो 1 अपॉन प्लस f इक्वल टू माइनस v माइनस ऑफ माइनस u। तो ये हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट कर देंगे तो 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। हमारा इंटरेस्ट था इन डी बाई यू, क्योंकि इट इज डी बाई यू, मैग्नीफाइंग पावर वाज डी बाई यू, इजंट इट? था ना डी बाई यू। तो मैं डी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from equation number 1 and 2, magnifying power is d by v plus d by f, right? ये आ गया आपका जनरल इक्वेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इक्वेशन नंबर 2, 2, 3, जो भी whatever it is, 2 और 3. Now the thing is, अब डिपेंड करता है इमेज कहाँ बना। अगर इमेज डिस्टेंस is equal to 25 centimeter, मतलब image distance is equal to DDV. So that there are two possibilities now. There are two special cases now. एक तो image बनेगा DDV पे, तो cases, उसमें पहला case number 1, if the image is formed at DDV, if image is formed at DDV, image is formed at distance of distinct vision, मतलब V equal to D। अगर V इक्वल टू D हुआ तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू D बाय D प्लस D बाय F, विच इज 1 प्लस D बाय F, करेक्ट? लेकिन कहाँ बना था ये? DDV पे, तो इसको बोलते हैं MP सफिक्स DDV, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV इज 1 प्लस D बाय F। गुड। अब केस नंबर 2, if the image is formed at infinity, just a minute, give me a minute, I will need more pages, so let me duplicate. Fine, good, here we go. Case number 2, case number 2, if image is formed at infinity, if image is formed at infinity, is formed at infinity, that means v is equal to infinity. So if v is equal to infinity अगर आया तो you will see here इक्वेशन नंबर 3 में से, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं मैं, इक्वेशन 3 में v की जगह पे क्या डालोगे आप? infinity. Therefore magnifying power when the image is formed at infinity is d upon infinity plus d upon f. Anything upon infinity is 0, so it is just d upon f. तो ये आपको मिल गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का केस। नाउ नंबर 2 इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब सी द थिंग इज, बात ऐसी है कि हमारा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हमें ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना था, which we were not able to see. Then we started decreasing distance between object and human eye. 25 सेंटीमीटर DDV तक आने तक भी ऑब्जेक्ट का जितना क्लैरिटी चाहिए था वो नहीं मिला। फिर हमने एक सिंगल लेंस यूज कर लिया और उस सिंगल लेंस को ऐसा सेट किया है such that the object is between optic center and focal length.
फोकस पॉइंट मतलब। तो इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब जितना इमेज बना है a डैश b डैश हो सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट, दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। अगर मुझे कोई एक सेल स्ट्रक्चर देखना है तो फिर ये भी सफिशियंट नहीं होता है, तो फिर देन यू यूज टू लेंसेस, राइट। अब दो लेंस यूज करते हो, उसको बोलते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ नहीं है, दो ही लेंस है आपके पास। अब दो लेंस है तो एक लेंस ऐसा होगा विच विल बी टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब ये लेंस है विच विल बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है, टू द लेफ्ट, राइट। तो इसको बोल देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, बिकॉज इट इज टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो इसको बोल देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस O, बिकॉज इट इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। अब और एक लेंस है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज आईपीस, क्योंकि आप उसमें से देखते हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आईपीस। तो यू हैव वन मोर लेंस व्हिच इज कॉल्ड एज आईपीस, ये आ गया आपका आईपीस, फाइन, eyepiece, because you look through eyepiece. Or remember, in case of microscope, objective aperture is smaller than eyepiece aperture. In case of telescope, it's the other way around. Telescope में eyepiece छोटा होता है, objective बड़ा होता है. For some reason that I'll tell you when we discuss telescope. अब ऐसा है, इन दोनों का principal axis it's overlapping. So the principal axis more or less overlaps, more or less. तो you should know that principal axis is overlapping. ये eyepiece हो गया, something like this. Good. Now you have an object. अब आपको पता है कि अगर आप फोकल पॉइंट से पहले रखते हो, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में रखते हो, तो इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे हम इंटेंशनली व्हाट वी विल डू इज, ऑन इंटेंशन हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखेंगे। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस द इमेज ऑब्टेन्ड विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये जो हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है, और बाय द वे फोकल लेंथ किसका है, ऑब्जेक्टिव का। ये ए बी का डिस्टेंस कहां से है, ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव यूओ। जानबूझ के हमने पिछले केस में क्या था, हमने फोकल लेंथ से पहले रखा था। इमेज ऑब्टेन्ड वाज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और यहाँ पे वो टेबल, दैट इज व्हाई आई रिवाइज दैट थिंग, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2FO, इमेज ऑब्टेन्ड इज रियल, रियल मतलब ऑन द अदर साइड, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा रियल, मतलब ऑन द अदर साइड। किसका अदर साइड, ऑब्जेक्टिव का। इन्वर्टेड तो ये ए डैश और ये बी डैश, एंड मैग्नीफाइड तो मैग्नीफाइड है। तो दिस इज हाउ इमेज फॉर्म्स। तो इमेज ऐसा बनता है, यू नीड टू नो दिस। गुड। तो इमेज बनने के लिए ऑफ कोर्स रे डायग्राम कंप्लीट करना पड़ता है हमको। तो रे डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। इट्स नॉट रियली नेसेसरी फॉर यू टू डू दिस ऑल नाउ, सिर्फ इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये ऐसा बनने वाला है। गुड। तो देन अब आप आईपीस को लाओगे। अब तक आईपीस वहां पे हमने सेट नहीं किया था, अब सेट करेंगे। अब जो कंडीशन आपने पहले केस में की, आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को इंटेंशनली ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ जो ए डैश बी डैश है, ये क्या है, ये इमेज है। किसने प्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्टिव ने। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, VO, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। अब इंटेंशनली, ऑन इंटेंशन, ये जो ए डैश बी डैश है, ये आप ऐसा करते हो कि आईपीस का फोकल पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में लाते हो। तो ए डैश बी डैश विच इज इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो ये हो गया डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसके लिए, आईपीस के लिए, राइट। गुड। तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनने वाला है, that will be of course virtual, मतलब सेम साइड ऑफ आईपीस। इरेक्ट किसका, लेकिन इरेक्ट ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में इरेक्ट, क्योंकि ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्ट है।
तो इरेक्ट मतलब इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा आएगा ये, मोर और लेस। ओके, समझ लेना आप, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, फाइन। तो ये आ जाएगा आपके पास ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो इट इज इरेक्ट क्योंकि ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, फाइन। इट इज इरेक्ट, इट इज वर्चुअल एंड इट इज मैग्निफाइड। तो डबल मैग्निफिकेशन हो गया, एक बार ऑब्जेक्टिव ने किया, एक बार आईपीस ने किया। और ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ए डैश बी डैश का डिस्टेंस कहां से ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस तक, इसको आप बोलते हो इमेज डिस्टेंस। तो ये आ गया इमेज डिस्टेंस, किसने बनाया, आईपीस ने, राइट। अब इसमें सबसे आइडियल केस जो होता है, आइडियल केसेस, ये जो ए डैश बी डैश है, इसको सीधा सीधा रख दो फोकस से थोड़ा पहले। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज इज एट इंफिनिटी, राइट, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर द टेबल, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज ऑब्टेंड इज रियल इन्वर्टेड। तो अगर मैंने एग्जैक्टली फोकस पर रख दिया तो वो जाएगा, कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा, राइट। फिर आप बोलोगे दिख ही नहीं रहा कुछ, कैसे दिखेगा, एवरीथिंग इज वेंट ब्लर्ड, image is magnified, it is directly forming inside your eye. How can you see something if you stand so close? बराबर, एक बोर्ड पे कुछ लिखा है और आप उसके आगे जाके से खड़े रह गए, you see nothing. So that is what happens, you see nothing because image is directly formed inside your eye. तो क्या करते हैं उसके लिए, थोड़ा सा ट्रिक, हमको तो चाहिए हाईली मैग्निफाइड, वी वांट हाईली मैग्निफाइड, तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, फोकस पे नहीं रखेंगे, फोकस से थोड़ा पहले रखेंगे, क्योंकि वो कंडीशन तो फोकस पे सेटिस्फाई होगी ना, तो फोकस से थोड़ा पहले रख देंगे, थोड़ा पहले, थोड़ा पहले तो ऑलमोस्ट फोकस ही है। हाँ, तो डिस्टेंस यूज करते वक्त ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ यूज कर लेते हैं, गुड, दैट केस वी विल सी लेटर ऑन। इतना क्लियर। तो अब आ जाओ वापस से ये डेफिनेशन पे, अभी बिकॉज यू नो आई एम टू लेजी, तो ये तो वही है, दिस इज द सेम थिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे अनएडेड आए तो कुछ यूज ही नहीं किया था। तो ये जो पहला केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डीडीवी, राइट, तो वो तो केस वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस डेफिनेशन में थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा ही चेंज होगा। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, क्योंकि यहाँ पे अब दो इमेजेस बनते हैं ना, तो हमको फाइनल इमेज की बात करनी है। फाइनल इमेज कौन सी, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, बाय फाइनल इमेज। तो आई विल जस्ट यूज दिस वर्ड एक्स्ट्रा ओवर हियर, फाइनल, ये फाइनल इमेज, राइट, एट आई, तो आई मतलब बेसिकली कहां से देखोगे, यहीं से देखोगे, फाइन। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा बीटा, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। फिर वही लॉजिक, वही सेम लॉजिक कि tan बीटा, अगर छोटा ट्राइंगल लिया, ए डैश बी डैश ओ लिया, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश, एडजेसेंट साइड इज यूई, फाइन, और A double dash B double dash and this distance is VE. तो A double dash B double dash by VE. अब इस केस में अगर एंगल छोटा हुआ तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, बाकी नीचे का तो वैसा ही है, नीचे का तो कोई चेंज करना ही नहीं, tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू AB by D। ये सब्स्टिट्यूट करो तो यू विल गेट मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हियर, मैग्नीफाइंग पावर is equal to ऊपर बीटा, नीचे अल्फा, बीटा बाय अल्फा, बट व्हाट इज बीटा, ए डैश बी डैश बाय यूई, ए डैश बी डैश बाय यूई अपॉन ए बी बाय डी, वेरी गुड। तो अब एक काम करेंगे, दिस इज इक्वल टू डी बाय यूई, है ना, हाँ, तो डी बाय यूई है, ये याद रखना, साइड में कर दो इसको, ये ए डैश
B dash by AB. But wait a minute. A dash B dash is image formed by objective, correct? And AB is object for objective. तो ये आ गया image size upon object size. So this is image size of objective upon object size of, और बोलो ज्यादा बेटर है, image size for objective और object size for objective. और ये आ गया d by u. d by u कहां से भी? It is ue. Fine. But wait a minute. Or do you remember something like magnification? This is magnification produced by objective. d by u. d by u कहां देखा था? Magnifying power for a single lens. और यहाँ पे the moment you write ue, मतलब this is magnifying power of eyepiece. हो गया. तो सिंपल क्योंकि कंपाउंड था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, मतलब दो लेंस थे, तो दो लेंस है तो दोनों का आना चाहिए. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस. दिस इज व्हाट यू हैव नाउ. इसको नंबर दिया नहीं, दे देते 6 नंबर. नाउ गोइंग वन स्टेप अहेड. अब ऐसा है, अगर आपको याद होगा डी बाई यू हमने बहुत सारे फॉर्मूला बना के रखे हैं. कौन कौन से? एक तो अगर इमेजेस फॉर्म्ड एट डीडीवी, तो उस केस में 1 प्लस डी बाई एफ. तो सेम केसेस हियर यू विल हैव अगेन सेम केसेस. केस 1, इफ द फाइनल इमेज, क्योंकि यहाँ पे दो इमेज है, तो फाइनल इमेज is formed at DDV. तो इस केस में what you will get is magnifying power of compound microscope suffix DDV MO. तो वैसा ही रहेगा, MO तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये D by UE. What was D by U? 1 plus D by F. तो 1 plus D by F किसका F? eyepiece का F, राइट? ये कहां से ले रहे हैं हम लोग? पिछले केस से ले रहे हैं. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. केस नंबर 2, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. मेरे को पता था कि जैसे मैं बोलूंगा इंफिनिटी तो फिर आप बोलोगे उसके लिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट फोकस, बट फोकस हुआ तो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कहाँ रखा है. वेरी क्लोज बट नॉट इक्वल. Not at focus exactly, but very close. If the final image is formed at infinity, if the final image is formed at infinity, so of course you know कि magnifying power क्या आ जाएगा? MO, और ये सिर्फ होता है D by FE. That's it. So this is what you get. अब book to book also, not only book to book, problem to problem. Magnifying मतलब MO, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, फिर इसके फॉर्मूला देखे आपने, वो याद है? F माइनस यू बाई एफ, F माइनस बी बाई एफ, ऐसा कुछ तो था. हाँ, तो फिर ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो अभी आई विल नॉट गो इनटू दैट. अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट साइज दिया है क्या, फिर आप सीधा ये यूज करोगे. नहीं तो अगर आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो फिर वो F अपॉन F माइनस यू का फॉर्मूला यूज होगा. तो वो डिपेंड करेगा केस टू केस, इट विल वेरी कि क्या क्या गिवन पैरामीटर्स है हमारे पास. गुड. आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट? देन द लास्ट केस दैट इज रिमेनिंग इज ऑफ टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप इज द मोस्ट सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑल. तो टेलीस्कोप मतलब यहाँ पे यू रिमेम्बर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला, राइट? अब फिर उसके बाद हमने लिया दूसरा था कंपाउंड. अब आएगा आपके पास सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज टेलीस्कोप. और टेलीस्कोप में दो टाइप आते हैं. एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न्ड, वी हैव रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप एंड नॉट रिफ्लेक्टिंग टाइप. तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में एक मिरर होता है, एक लेंस होता है. दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस. वी आर सपोज्ड टू यूज रिफ्रैक्टिंग telescope. Refracting telescope consists of two lens. Or of course, as I told you,
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का साइज एपर्चर बड़ा होता है फॉर वेरी वेरी सिंपल रीजन। ऑब्जेक्ट एक बात समझ लो पहले। बात ऐसी है कि हम टेलीस्कोप कहाँ यूज करेंगे, किसको देखने के लिए यूज करेंगे? स्टार, मून, प्लैनेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी गुड। मतलब these are the objects which are far away। और far away है इसके लिए फेंट दिखते हैं। फेंट दिखते हैं क्योंकि लाइट वहां से जो भी आ रहा है वो कम रिसीव हो रहा है। तो अगर लाइट कम रिसीव हो रहा है इसलिए फेंट था, और हमको उसको मैग्नीफाई करना है इमेज को, तो ज्यादा लाइट कलेक्ट करना है, ज्यादा लाइट कलेक्ट करना है। और आपने ऑब्जेक्टिव का ही साइज छोटा रख दिया तो फिर गए काम से। फिर आप करते बैठो क्या करना है, never get a good image, right? तो that is why ऑब्जेक्टिव का लाइट कलेक्टिंग एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू आईपीस। और वैसे भी हम आईपीस से देखने ही वाले हैं। इतना बड़ा आईपीस करके रख दिया, will be of no use to you. And well, one more thing you need to know that in this case, because object that you want to see they are far away from you, तो इस केस में हम हमेशा एंगल्स में ही मेजर करते हैं। So there is, and by the way, also you know from ray optics, object if it is at infinity, the rays coming from the object is parallel, right? Parallel. Very good. They are parallel, not really para-axial. Para-axial हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। Para-axial मतलब parallel और axis को भी parallel। अब और आपको एक चीज पता है, if the object is at infinity, image is formed at focus। लेकिन थोड़ा सा अब डिटेल में जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। When the rays are para-axial, if the rays are para-axial, so in that case, rays coming from object at infinity, they converge at focus, right? But if you have not para-axial but parallel, rays are parallel because object is at infinity, but they are not para-axial, they are not parallel to principal axis. In that case, rays basically they converge। कहाँ पे converge होंगे? In the focal plane। तो वो focal plane पे कहीं converge होंगे, not on the focal point। तो ये याद रखना, they are converging at focal plane। अब और मैं वापस बता रहा हूँ, डायग्राम्स आई विल नॉट ड्रॉ एग्जैक्टली, मैं रफ डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यू हैव रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, द इमेज सो फॉर्म्ड हियर इज फॉर्म्ड वेयर? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। तो याद रखना इन दिस केस ये ऑब्जेक्टिव है, इमेज कहाँ बना? फोकल प्लेन। किसका फोकल प्लेन? ऑब्जेक्टिव का। तो इमेज डिस्टेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी। अब हमारा टास्क ये था, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा दिख रहा है, उसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना है। तो ये जो आपके पास इमेज बना, एक ऑब्जेक्ट था ए बी, दूर था, उसका इमेज बना ए डैश बी डैश। अब थिंक ये जो आईपीस है इसका जो फोकल लेंथ होगा, अगर हमने ऐसा सेटिंग कर दिया कि ये जो ए डैश बी डैश है, मतलब ये जो इमेज है किसने बनाया? ऑब्जेक्ट ने। इट बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। एंड if in addition object distance for eyepiece happens to be focal length of eyepiece, focal length पे अगर रख दिया तो image is formed at infinity and it is highly magnified। तो image will be formed at again same logic, not really at focus but just behind focus। so image जो बनेगा, मैं अभी image तो draw नहीं करने वाला, but you need to know that image is formed right there at infinity। तो image at infinity, और image at infinity होगा तो highly magnified होगा। This is how you magnify object which is far away, right? तो अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर और भी सिंपल है, जस्ट सिंगल फॉर्मूला। इट इज दिया है, सही दिया है,
Magnifying power for a telescope is the ratio of focal length of objective to that of focal length of eyepiece. कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, लेकिन you need to remember it is focal length of objective upon focal length of eyepiece with a negative sign. Why negative sign? देखो फाइनल आपका ऑब्जेक्ट क्या था, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस था और इमेज कहाँ बना, बिलो. तो नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट द फाइनल इमेज इज इनवर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो मून आप देखते हो, आपको टेलीस्कोप में उल्टा दिखता है. उल्टा मतलब ऐसा फ्लिप नहीं, उल्टा. इफ यू आर लुकिंग एट द हैंड थ्रू अ टेलीस्कोप यू विल सी इनवर्टेड. तो नेगेटिव साइन टेल्स यू इट इज इनवर्टेड. फाइन. अब दो चीजें हैं, जहां जहां पे दो लेंस यूज हुए ना, उसमें एक चीज कॉमन आती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब. दो लेंस कहां यूज हुए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहां पे यू सी VO which is object image distance by objective, and UE that is object distance for eyepiece. This is nothing but distance between objective and eyepiece. इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब. क्यों लेंथ ऑफ द ट्यूब? लॉजिकली स्पीकिंग, ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हो, उसके दो लेंस कहां फिट किए आपने, एक एंड पे, एक दूसरे एंड पे. ऐसा एक पाइप के अंदर फिट करते हो ना, हाँ, तो इसके लिए लेंथ ऑफ द ट्यूब. सो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. लेकिन यू सी ये आ जाएगा VO प्लस UE. तो यहाँ पे यू विल गेट लेंथ ऑफ द ट्यूब. लिख देता हूं यहाँ पे मैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब. स्पेस है हमारे पास, गुड. लेंथ ऑफ द ट्यूब इन दिस केस, length of the tube happens to be, which is distance between objective and eyepiece, VO plus UE. VO plus UE. अब स्मॉल ई कैपिटल ई आप करते बैठना, कभी मैंने स्मॉल ई यूज किया, कभी कैपिटल, डजंट मैटर. अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट. एनीवेज, सिमिलरली हियर लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब यहाँ तो बहुत इजी है. यहाँ तो आप लिख सकते हो एज आई टोल्ड यू, VO प्लस UE. मतलब यहाँ पे भी VO प्लस UE था, वहां पे भी VO प्लस UE है. बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे VO इज FO एंड UE इज, तो मतलब दोनों फोकल लेंथ का एडिशन करना है, दैट बिकम्स लेंथ ऑफ द ट्यूब. तो माइक्रोस्कोप से ज्यादा इजी केस है टेलीस्कोप का. So that is the end of theory part, which means we are supposed to start with few questions. Fine.